Ignited Minds Tutorials is bridging the gap between students and quality education with its enlightening series of video lectures on the topic of mechanical properties of fluids physics for IIT/CBSE Class 11/Maharashtra State Board Class 12. Fluid mechanics, a fundamental branch of physics, studies the behavior of fluids under different conditions, and understanding its mechanical properties is crucial. These video lectures simplify complex concepts with detailed explanations, making them accessible to students of all levels. By covering topics such as pressure, viscosity, surface tension, buoyancy, and fluid dynamics, students gain a holistic understanding of fluid mechanics. The tutorials cater to the specific requirements of IIT aspirants, CBSE Class 11 students, and Maharashtra State Board Class 12 students. The comprehensive approach of these lectures ensures that students thoroughly comprehend the subject matter, strengthen their analytical skills, and prepare effectively for their exams. The videos not only cover theoretical explanations, but also provide practical examples and problem-solving techniques. By presenting real-life applications of fluid mechanics, students develop a deeper appreciation for the subject and its relevance in various fields. Ignited Minds Tutorials' commitment to delivering quality education is evident through their systematic and knowledge-oriented approach. With their series of videos on the mechanical properties of fluids, students receive a valuable educational resource that empowers them to excel in their academic pursuits and ignite their minds for a brighter future. Okay, people, yesterday we had learnt about Bernoulli's theorem, and Bernoulli's theorem भाई साहब क्या बोलता है कि किसी भी लिक्विड में, इसको बंद कर देना प्लीज, थैंक यू सो मच, किसी भी लिक्विड में अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है और उस लिक्विड का नॉन विस्कस नेचर है, उसमें कोई भी रोटेशनल मोशन नहीं हो रहा है, ये सब तमाम चीज़ें, मतलब आइडियल फ्लूइड में जो भी कंडीशंस आपकी एप्लीकेबल होती हैं, है ना, मतलब आपका इरोटेशनल एस्पेक्ट और आपका भाई साहब स्ट्रीमलाइन फ्लो, हाँ कुछ बोला, हाँ नॉन विस्कस नेचर और इनकम्प्रेसिबल, ये सारे तमाम चीज़ें अगर हैं तो आपका बर्नौलीज थ्योरम उस पर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, देखिए कायदे से तो कोई भी आइडियल फ्लूइड नहीं होता है, लेकिन ले देकर मतलब आसपास होते हैं, आइडियल नेचर के आसपास होते हैं, तो हर एक चीज़ जो है वो बर्नौलीज थ्योरम को ले दे के फॉलो कर ही लेती है। ठीक है, तो बर्नौलीज थ्योरम क्या बोलता है, द summation of pressure energy plus kinetic energy per unit volume plus potential energy per unit volume of a fluid, of a moving fluid, will always be a constant. That is P plus half rho V square plus m rho GH. This is going to be a constant. ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, दिस इज समथिंग दैट वी हैड डिस्कस्ड यस्टरडे एंड प्रूव्ड एज वेल, इसका डेरिवेशन भी अपन ने किया हुआ था। ठीक है, ओके, तो अभी हम आते हैं भाई साहब, अगर इसका दिस proves that according to Bernoulli's principle the total energy per unit volume remains constant। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपने भाई साहब इसको डिवाइड कर दिया रो जी के साथ, तो आपका भाई साहब इक्वेशन क्या था, देखो P प्लस हाफ रो V का स्क्वायर प्लस रो जी एच, दिस इज कॉन्स्टेंट, लेट्स से कॉन्स्टेंट कोई के है, और इसको अपन ने डिवाइड कर दिया भाई साहब जी एच के साथ। ठीक है, अगर रो जी के साथ, आई एम सो सॉरी, रो जी, क्योंकि रो और जी भी आपका कांस्टेंट होगा ना, लिक्विड के लिए तो डेंसिटी कांस्टेंट होगी, और भाई साहब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी आपका कांस्टेंट होगा। इन दोनों से अगर हमने डिवाइड किया तो आप इस पे क्या लिख सकते हैं, रो जी प्लस यहाँ पे रो और रो कैंसिल हो गया, हाफ वी स्क्वायर बाई जी प्लस यहाँ पे रो जी कैंसिल हो गया, एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो इसका एक दूसरा रूपांतरण है, दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच द सम ऑफ द प्रेशर हेड, ये आपका भाई साहब प्रेशर हेड है, प्रेशर को जब अपन डिवाइड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको अपन बोलेंगे प्रेशर हेड, और ये हो गया आपका वेलोसिटी हेड, और ये हो गया भाई साहब आपका ग्रेविटेशनल हेड रिमेन्स कांस्टेंट इन स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एनी लिक्विड। समझ में आ रहा है भाई साहब? दैट इज मतलब कुछ नहीं करना है, बर्नौलीज थ्योरम को अगर आप रो जी से डिवाइड करते हो तो जो आपको मिलता है, प्रेशर की जगह पे मिल जाएगा प्रेशर हेड,
काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की जगह पे मिल जाएगा वेलोसिटी हेड, और आपके पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे आपको क्या, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की जगह पे आपको भाई साहब क्या जगह मिल जाएगा, ग्रेविटेशनल हेड, ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट। बर्नौलीज इक्वेशन आइडियली अप्लाइज टू फ्लूइड्स विद जीरो विस्कोसिटी, आपने पढ़ा भाई साहब, ठीक है, और जीरो विस्कोसिटी का कोई फ्लूइड नहीं होता है, ठीक है, लेट दैट बी वेरी क्लियर। कोई भी ऐसा फ्लूइड नहीं होगा जिसमें, फ्लूइड मतलब क्या होता है, गैसेस एज वेल एज लिक्विड्स, कोई भी ऐसा फ्लूइड नहीं है जिसमें जीरो विस्कोसिटी हो। लेकिन बर्नौलीज थ्योरम ले देके सब लोग थोड़ा बहुत फॉलो कर ही लेते हैं। इन केस ऑफ विस्कस फ्लूइड्स वी नीड टू टेक इनटू अकाउंट द वर्क अगेंस्ट विस्कस ड्रैग। Bernoulli's equation has been derived on the assumption that there is no loss of energy due to friction, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से लिक्विड के अंदर फ्रिक्शन लेवल्स होंगे और इसके वजह से लॉस ऑफ एनर्जी होगा, ठीक है। आपने देखो जब डेरिवेशन किया तो क्या किया भाई साहब, जो ये बड़े वाले सेक्शन से जितना मास जा रहा था, छोटे वाले सेक्शन से भी उतना ही मास जा रहा है, और ये किस पे बेस्ड था आपका, कि एनर्जी आपका कंजर्व्ड है ना, जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी है वो कंजर्व्ड है, लेकिन एनर्जी का लॉस तो होगा ना थोड़ा बहुत। आप जब फ्लूइड को फ्लो करवा रहे हैं तो आपस में फ्लूइड के लेयर्स में फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शन के चलते आपका एनर्जी का लॉस होगा। तो ऐसा हो नहीं सकता कि विदाउट एनर्जी का लॉस किए हुए कोई फ्लूइड आगे बढ़े, ठीक है, ओके। सो देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन, बट इन प्रैक्टिस व्हेन फ्लूइड्स फ्लो सम ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट due to the work done against the internal forces of friction or viscous forces. Bernoulli's equation is applicable only to incompressible fluids because it does not take into account the elastic energy of the fluids. तो fluids में भाई साहब एक elastic energy होती है, आपने मॉडल बल्क मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ा हुआ है। आए कैसे हो, ठीक है, you have basically understood Bulk's modulus of elasticity. Bernoulli's equation is applicable only to streamline flow of fluid and not when the flow is turbulent. ये सब आपके थोड़े बहुत चीजें हैं जो आपको जाननी जरूरी है। Bernoulli's equation doesn't take into consideration the angular momentum. Angular momentum मतलब क्या है, जैसे ही आपका रोटेशनल मोशन होगा, और बर्नौली के थ्योरम को डिराइव करने के पहले ही हमने अज्यूम कर लिया है कि यहाँ पे वैसा रोटेशनल मोशन नहीं हो रहा है। कोई भी फ्लूइड, आपने किसी बहते हुए नदी को देखा है, उसमें आपने देखा रहेगा ऐसे चक्र बनते रहते हैं, है ना, क्या बोलते हैं आप उसको, ऐसे घुर्नी बनते रहते हैं ऐसे, ठीक है, वो अपने आप ही बनेंगे क्योंकि ऐसे स्पीड से जा रहा है वो बनेगा ही बनेगा, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मतलब ऐसा बने ना, ठीक है। सो ये बर्नौलीज के थ्योरम के डेरिवेशन के पहले के अजम्पशंस ही हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो, नॉन विस्कस नेचर, इरोटेशनल एस्पेक्ट, ठीक है, और क्या था भाई साहब आपका, एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, ये सारी चीजें भाई साहब, और आपका भाई साहब टर्बुलेंट फ्लो का ना होना, ओके। Bernoulli's principle is a fundamental principle of fluid dynamics based on the law of conservation of energy. In Bernoulli's equation, ठीक है, P plus rho GH is called the static pressure. तो ये भाई साहब, ये वाला टर्म अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीकों से सवाल पूछा जाता है, ठीक है। P plus rho GH plus half rho V square is equal to constant, और P plus rho GH को अपन क्या बोलते हैं, static pressure. Static pressure मतलब क्या होता है भाई साहब, ठहरा हुआ प्रेशर। देखो रो जी एच क्या है आपका, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और पोटेंशियल एनर्जी होती है बॉडी के स्टैटिक पोजीशन की वजह से, इसीलिए अपन इसको स्टैटिक प्रेशर बोल रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड स्टैटिक प्रेशर बिकॉज इट इज द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड इवन इफ इट इज एट रेस्ट नॉट मूविंग, ठीक है। द टर्म हाफ रो वी स्क्वायर इज कॉल्ड द डायनेमिक प्रेशर, इसको अपन डायनेमिक प्रेशर बोलेंगे, विच इज द प्रेशर बाय वर्च्यू ऑफ इट्स वेलोसिटी। सो बर्नौलीज इक्वेशन कैन बी रिटन एज स्टैटिक प्रेशर प्लस डायनेमिक प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, सिंपल सी बात है भाई साहब, प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये आपका बर्नौलीज थ्योरम है। अगर अपन ने इसको इन दोनों को ऐड किया तो ये दोनों भाई साहब क्या बन जाएंगे, प्रेशर प्लस रो जी एच, this is going to be the static pressure, this is called the static pressure, और भाई साहब इसको अपन क्या बोलेंगे, डायनामिक प्रेशर, this is known as dynamic pressure। तो बर्नौलीज थ्योरम को दूसरा लिखने का भाई साहब कैसा तरीका है, स्टैटिक प्रेशर प्लस डायनामिक प्रेशर, स्टैटिक प्रेशर प्लस डायनामिक प्रेशर, दिस विल बी अ कांस्टेंट, ये भाई साहब आपका हो जाएगा कांस्टेंट। ये दूसरा तरीका है बर्नौलीज थ्योरम को लिखने का। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ओके। स्पीड ऑफ एफ्लक्स, ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट स्पीड ऑफ एफ्लक्स। तो आप समझ लो यहाँ पे द वर्ड एफ्लक्स मीन्स द आउटफ्लो ऑफ अ लिक्विड।
किसी भाई साहब टंकी में आपने कोई पाइप आउटलेट दिया हुआ है या कोई होल ही हो गया है, तो वहां से जो जिस तरह से पानी निकलता है जिस स्पीड से, उसको अपन बोलते हैं स्पीड ऑफ एफ्लक्स, ठीक है। ओके, सो द वर्ड एफ्लक्स मींस द आउटफ्लो ऑफ अ लिक्विड एज शोन इन द फिगर। कंसीडर अ टैंक कंटेनिंग अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। तो अभी भाई साहब ये टैंक है और इसमें भाई साहब एक लिक्विड है और इसकी डेंसिटी कितनी है, रो, ठीक है, विद अ स्मॉल होल ऑन इट्स साइड एट अ हाइट y1। ये वाला जो होल है ये कितने हाइट पे है, y1 पे है। समझ में आ रहा है भाई, ठीक है। ओके, फ्रॉम द बॉटम लेट y2 बी द हाइट ऑफ द लिक्विड। अभी समझ लो इस टैंक के अंदर इतना इसका y2 लिक्विड का हाइट है और ये वाला है आपका y1 हाइट पे, ठीक है, क्लियर है। ओके, लिक्विड सरफेस फ्रॉम द बॉटम एंड P विद द एयर प्रेशर अबव द लिक्विड। तो आपका एयर प्रेशर जो यहाँ पे एयर का एक प्रेशर रहेगा, इसका लेट्स से प्रेशर है P, ठीक है। A1 एंड A2 आर द क्रॉस सेक्शनल एरियाज ऑफ द साइड होल, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे A1 हो गया और A1 एंड A2 आर द क्रॉस सेक्शन एंड द टैंक। तो टैंक का भाई साहब क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 और इसका एरिया कितना है, A1 है, ठीक है। ओके, V1 एंड V2 आर द लिक्विड वेलोसिटीज एट पॉइंट 1, ठीक है, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। तो ये भाई साहब नीचे जा रहा है एक वेलोसिटी से और ये भाई साहब बाहर जा रहा है एक वेलोसिटी से। सो इसके बाहर जाने का वेलोसिटी अपन ने मान लिया V1 और इसके नीचे जाने की वेलोसिटी अपन ने मान ली भाई साहब V2, ठीक है। ओके, सो हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से क्या बोल सकते हैं, A1 V1 विल बी इक्वल टू A2 V2, है ना। तो A1 इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, V1 इसका वेलोसिटी, A2 इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और V2 इसकी वेलोसिटी। तो A1 V1 इज इक्वल टू दिस। V2 की वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं, A1 A2 बाई A2 इंटू V1। क्लियर क्लियर क्लियर। ओके, नाउ A2 भाई साहब आपका, अगर आप देखोगे कहाँ A2 और कहाँ एक छोटा सा पाइप, तो टंकी का पूरा एरिया और एक छोटा सा होल उसका, तो ऑब्वियसली A2 का वैल्यू भाई साहब A1 से कहीं ज्यादा है। सो द लिक्विड में बी टेकन एट रेस्ट एट द टॉप। तो अपन बोल सकते हैं कि भाई साहब ये V2 जो है, अगर देखो यहाँ पे क्या है, अगर इस रिलेशनशिप को आप देखें तो A2 की वैल्यू A1 से काफी ज्यादा है। मतलब ये V2 की वेलोसिटी की जो वेलोसिटी होगी, वैल्यू वो बहुत कम होगी। समझ में आ रहा है, ये बहुत कम होगी ना भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं कि V2 अप्रोक्सीमेटली 0 होगा, धीरे धीरे जा रहा है। एक छोटा सा पाइप है, उसमें से कितना ही पानी निकल रहा होगा, धीरे धीरे जा रहा है, ठीक है। अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन एट द पॉइंट्स 1 एंड 2 वी गेट, भाई साहब पॉइंट 1 पे अगर हमने अप्लाई किया, प्रेशर एट A प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो G Y1, ठीक है, इज इक्वल टू P प्लस रो G Y2। अभी हमने हाफ रो V2 का स्क्वायर क्यों नहीं लिया है, क्योंकि V2 भाई साहब आपका 0 ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। ओके, सो अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, यहाँ पे हाफ रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू रो G Y2 माइनस Y1 और यहाँ पे P माइनस PA, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब ये प्रेशर है, यहाँ पे दिस इज बेसिकली प्रेशर और यहाँ पे आपका PA, तो ये आपका प्रेशर हो गया। Y2 माइनस Y1 आपका क्या हो जाएगा, लेट्स से हमने H मान लिया इसको, ठीक है, Y2 माइनस Y1 को H, तो रो GH P माइनस PA, हाफ रो V1 का स्क्वायर, तो V1 की वैल्यू भाई साहब इतनी आ जाएगी। इसको याद करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन डेरिवेशन में कुछ टाइम आपका नहीं लगेगा अगर आप थरह हैं तो, ठीक है। सो स्पेशल केसेस व्हेन आपका भाई साहब P बहुत ज्यादा है PA से, मतलब P मतलब क्या है, ये वाला प्रेशर, ठीक है, ये PA से काफी ज्यादा है, ठीक है। तो PA इज व्हाट बेसिकली, अगर आप देखोगे तो ये कुछ नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। ये एक्चुअली में कुछ नहीं है, दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P विद द एयर प्रेशर अबव द लिक्विड सरफेस और ये PA भाई साहब यहाँ पे प्रेशर है, ठीक है। ओके, अगर P आपका PA से काफी ज्यादा होता है, ठीक है, द 2GH में बी इग्नोर, तो आप इस 2GH को इग्नोर कर सकते हैं, दिस कैन बी इग्नोर। अगर ये बहुत ज्यादा हो गया इससे, ठीक है, तो आप इसको भाई साहब इग्नोर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे सीधा सीधा क्या लिख दोगे भाई साहब, GH को इग्नोर करते हुए आप लिख दोगे 2P, ये आपका रो माइनस रो A, ठीक है, P माइनस PA अपॉन रो, ठीक है। When P is 2 greater than रो A, 2GH में बी इग्नोर, तो इस फैक्टर में आप इसको इग्नोर कर सकते हो क्योंकि ये बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो अपन इसको सीधा सीधा 2P माइनस PA अपॉन रो लिख सकते हैं, ठीक है। Thus the speed of efflux is determined by the container pressure P। कंटेनर प्रेशर P मतलब इसके ऊपर कितना प्रेशर है, समझ में आता हूं, ठीक है। ओके ओके ओके, व्हेन द टैंक इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, अगर टैंक भाई साहब एटमॉस्फेयर में ओपन है तो आपका यहां पे भी वैल्यू कितना हो जाएगा, PA, क्योंकि यहां पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है, और यहां पे भी वैल्यू कितना हो जाएगा, PA, दोनों पे भी आपका कितना हो जाएगा, PA।
द वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स ऑफ अ लिक्विड, तो आपका भाई साहब P इक्वल टू पी हो जाएगा। अगर P और PA बराबर होते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 0 है कि नहीं। P और PA बराबर हो गया तो आपका वेलोसिटी V1, वहां से निकलता हुआ वेलोसिटी V1 कितना हो जाएगा, √2gh, दैट विल बी √2gh। Thus the velocity of efflux of a liquid is equal to the velocity which a body acquires in freely falling state, ठीक है, टॉरसलीज लॉ। दिस रिजल्ट इज कॉल्ड टॉरसलीज लॉ। मतलब अगर कोई बॉडी है, देखो आपने उसका फ्री फॉल कराया है, u इज इक्वल टू 0 है और यहाँ पे भाई साहब लेट्स से वो हाइट h है, तो इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा बोलो, v इज इक्वल टू u प्लस at होता है भाई साहब, v इज इक्वल टू u प्लस at। दूसरा क्या हो जाएगा भाई साहब, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे भाई साहब u स्क्वायर की जगह पे आप लिखोगे 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी इंटू एच, तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 2gh, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी √2gh। क्लियर आर वी क्लियर ऑन दिस वन टिल, ठीक है। क्या ये समझ में आया कि बहुत फास्ट हो गया बाबू? नहीं मैं बता सकता हूँ, देखो यहाँ पे आपका एक देखो टैंक है, लेट्स से ये आपका एक टैंक है। इस टैंक का क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दिया हुआ है, ऊपर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, ध्यान से देखना भाई साहब, ठीक है। इस टैंक का ऊपर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया हुआ है भाई साहब आपको, लेट्स से A2 है, ठीक है, दिस बेसिकली A2। और इस टैंक में हमने भाई साहब एक होल कर दिया है, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ से एक होल किया गया है इस टैंक में और यहाँ से पानी निकल रहा है, ठीक है। लेट्स से वेलोसिटी है पानी की V1, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू कितनी है भाई साहब A1, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो ऑब्वियसली किसका प्रेशर है भाई साहब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। टैंक में भाई साहब आपका लेट्स से इस हाइट तक पानी है, इस हाइट तक भाई साहब पानी है और इस हाइट तक पानी है, मतलब आपने यहाँ पे जब भी हाइट लेना है ना तो आपको मतलब मीडियन हाइट लेनी पड़ेगी। मीडियन हाइट मतलब इस टैंक का मिड पॉइंट आपने देखा ये वाला, ठीक है, और यहाँ पे भाई साहब आपने देखा तो ये वाला हाइट कितना हो गया भाई साहब, लेट्स से दिस इज y2, ये वाला हो गया आपका y1। और अगर y2 माइनस y1 करेंगे तो लेट्स से ये वाली हाइट हो गई कितनी भाई साहब आपकी h, ठीक है, ये वाली हाइट हो गई भाई साहब आपकी कितनी h। ओके आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स पीपल, ठीक है। ओके तो आपका यहाँ पे प्रेशर लेट्स से ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, टैंक बंद है, तो इसके ऊपर जो एयर है उसका प्रेशर कितना है भाई साहब P, ठीक है। ओके तो अभी अपन यहाँ पे A1 है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है बेसिकली, A2 इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। तो आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अगर अपन लगाते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है भाई साहब, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो V2 की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं लेट्स से आपका A1 की जगह के कैपिटल A1 V1 इज इक्वल टू कैपिटल A2 V2। तो V2 मतलब ये वाला वेलोसिटी, देखो ये V1 है और V2 मतलब कौन सा वेलोसिटी है भाई साहब आपका, ये वाला वेलोसिटी, ये आपका V2 है, ठीक है, क्लियर है। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो आपका भाई साहब यहाँ पे V2 कितना हो जाएगा, V2 विल बी इक्वल टू A1 V1 बाई A2, A1 V1 बाई A2, ठीक है। अभी आपका कहाँ टैंक है इतना बड़ा सा भाई साहब और कहाँ एक टुन्नू सा पाइप आपने निकाला है उधर से, ठीक है। तो टैंक का इतना बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज A2 जो है ये काफी ज्यादा बड़ा है किससे, A1 से। और अगर ऐसा होता है तो इस फ्रैक्शन में देखो A2 की वैल्यू A1 से बहुत ज्यादा होगी और जितना ज्यादा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज्यादा होगा उतना ज्यादा फ्रैक्शन किसको अप्रोच करेगा, जीरो वैल्यू को। समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। जैसे समझ लो भाई साहब आपने यहाँ पे 1/2 लिखा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 0.5, लेकिन अगर आपने भाई साहब 1/100 लिख दिया तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 0.01। तो जैसे जैसे आप फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ाते हैं इट इज अप्रोचिंग जीरो, ठीक है, इट इज एक्चुअली अप्रोचिंग जीरो, ठीक है। इसको अपन जीरो, अगर मैंने बोला कि भाई साहब यहां तक ही फिनिश करना है तो क्या ही लिखोगे तुम, जीरो ही लिखोगे ना भाई साहब, ठीक है। तो इतना डिनोमिनेटर बड़ा है भाई साहब इधर का, ठीक है, कि आप बोल सकते हैं कि V2 की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी, V2 की वैल्यू हो जाएगी A1 V1 बाई A2। तो आप इसको V2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जीरो मान सकते हैं। बहुत धीरे से ये नीचे जा रहा है, ठीक है। आप देखोगे मतलब मेरे बिल्डिंग में एक बार ऐसा हुआ था कि कोई बाहर गया और उसने अपना टैप खुला छोड़ दिया, ठीक है। अभी सुबह मतलब मैं सेक्रेटरी हूँ तो मेरे को फ़ोन कर रहा है वॉचमैन, सर पूरा टैंकी खाली हो गया।
मैंने तो दोपहर को ही भर के रखा था, अभी देख रहा हूँ कि पूरा टैंकी खाली है। इसका मतलब क्या हुआ, शाम से लेकर वो पानी जा रहा है, पूरी रात भर गया रहेगा, और सुबह जब वो पानी चलाने जा रहा है तो देख रहा है पूरी टंकी खाली है। तो आप सोचिए, मतलब एक टैप खुला हुआ है ना, हाँ पूरा पानी बह गया है वहाँ से, लेकिन एक टैप खुला हुआ, कितने धीरे पानी गया होगा, 8-10 घंटे में वो पानी खाली हुआ है। समझ में आ रहा है? टंकी का हाइट कितना होगा, इतना होगा भाई साहब, ठीक है, इतना होगा, यहाँ तक पानी भरा होगा, यहाँ से उसको यहाँ तक जाने में 10 घंटे लग गए। तो आप सोच रहे कितना लो है वेलोसिटी। कोई भी बड़े टैंक का यही हाल होगा। किसी बड़े टैंक को अगर आप एक छोटे से आउटलेट से खाली कर रहे हो तो इतना ही टाइम लगेगा। आपने भाई साहब पार्टीज वगैरह में देखा रहेगा, बिस्लरी लगा हुआ रहता है, या आप किसी ऑफिस वगैरह में अगर आप देखोगे तो वो बिस्लरी रहता है भाई साहब, कंटेनर पूरा दिन चलता रहता है, लोग पानी पिए जा रहे हैं भाई साहब, और टुन्नू सा भाई साहब वो एक नल है, उसमें से पानी आ रहा है, एक गिलास भर के पानी पी रहे और वो चलता ही रहता है। तो आप देखोगे उसका जो वेलोसिटी है वो बहुत धीरे जाएगा। आर वी कनेक्टिंग टू दिस? ठीक है, तो यहाँ पे आपका दिस वी कैन अज्यूम दैट इट इज 0। ठीक है, अभी हम आते हैं भाई साहब बर्नौलीज प्रिंसिपल पे। बर्नौलीज प्रिंसिपल इस पे यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हो गया भाई साहब क्या, प्रेशर इज PA, ठीक है, और बोलो भाई साहब हाफ रो V1 का स्क्वायर, दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्लस रो G, और ये क्या है भाई साहब आपका Y1, तो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। दिस विल बी इक्वल टू, यहां पे आते हैं भाई साहब, ठीक है, एट दिस पोजीशन। तो लेट्स से ये पोजीशन आपकी B है और ये पोजीशन आपका A है, तो PA पे भाई साहब क्या हो जाएगा, ये वाला प्रेशर अपन ने कितना लिया हुआ है, लेट्स से प्रेशर प्लस 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 हाफ रो V2 का स्क्वायर, रो सॉरी V2 भाई साहब जा रहा है, तो V2 का स्क्वायर प्लस रो GY2। समझ में आता है? अभी ये वाला जो फैक्टर है, क्योंकि अपन ने V2 को 0 माना हुआ है, ये वाला फैक्टर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, सो दिस विल बी प्रेशर प्लस रो GY2। सो यहाँ पे हो गया आपका भाई साहब प्रेशर प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GY1। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो अपन भाई साहब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं P, इसको इधर लिया तो ये हो गया P माइनस PA, ठीक है, और भाई साहब इसको इधर ले लिया, आपका रो GY1 है, तो रो G ये हो गया आपका भाई साहब रो GY2 को अंदर लिया, Y2 माइनस Y1। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो ये दोनों फैक्टर्स हो गए, हमने कंसिडर कर लिए, और ये वाला फैक्टर भी भाई साहब अपन ने कंसिडर कर लिया। इधर अपना क्या रह गया भाई साहब, हाफ रो V1 का स्क्वायर। क्लियर 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 क्लियर। अपने को क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। ठीक है, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट हियर इज वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, और एफ्लक्स मतलब V1, कितने वेलोसिटी से यह भाई साहब बाहर जातम। समझम समझम समझम, बहुत बढ़ियम बढ़ियम बढ़ियम। ठीक है, तो अपन भाई साहब अभी क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे भाई साहब, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अभी ये Y2 माइनस Y1 अपन ने देखा क्या है, Y2 माइनस Y1 को अपन ने मान लिया डिफरेंस इन हाइट, दैट इज H, जस्ट टू रिड्यूस द कॉम्प्लिकेशंस आउट हियर। ठीक है, सो अपन करते हैं भाई साहब, पहले तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया 2P माइनस PA, और इस रो से डिवाइड, मतलब इसको अपन 2 से मल्टीप्लाई कर दो और रो से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा आपका V1 का स्क्वायर रह गया। ठीक है, रो और रो कट गया, 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 2 और 2 कट गया। इधर कितना हो जाएगा बोलो, 2P माइनस PA, प्लस यहाँ पे रो और रो कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 2G, Y2 माइनस Y1 की वैल्यू कितनी हो गई, H। ठीक है, क्लियर है? तो आपका भाई साहब यहाँ पे ए भला 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 नहीं, लेकिन अपन ने रो इधर तो रो होगा ना भाई साहब, इधर तो रो होगा ना, है ना भाई, क्लियरम क्लियरम क्लियरम। ठीक है, तो आपका V1 कितना आ गया बोलो, V1 हो गया आपका अंडर रूट ऑफ 2P माइनस रो A बाई रो प्लस 2GH। ठीक है, क्लियरम क्लियरम क्लियरम। ओके, तो आपका भाई साहब अगर यहाँ पे हमने कंडीशन क्या लिया हुआ है, तो ये आपका भाई साहब फॉर्मूला आ गया। ठीक है, दिस इज बेसिकली द फॉर्मूला 2GH प्लस 2P माइनस PA अपॉन रो। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। देखो भाई साहब ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि डेरिवेशन बहुत डिफिकल्ट है, आपको बर्नौलीज थ्योरम को लगाना है। ठीक है, और एक अजम्पशन आपको करना है कि इस टंकी में पानी का नीचे जाने का जो बहाव है वो वेलोसिटी अप्रॉक्सीमेटली 0 है, और उसको रीज़न आपको ये देना है कि A2 आपका A1 से काफ़ी ज़्यादा है, मतलब डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर से काफ़ी ज़्यादा है।
सो आपको बस वही चीज ध्यान रखनी है कि V2 जो है वो आपका 0 हो जाएगा। क्लियर है? दैट इज ऑल दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ इन दिस डेरिवेशन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है। अभी हम बात करेंगे भाई साहब, बात करेंगे किसकी बात करेंगे भाई साहब? व्हेन P इज टू मच ग्रेटर देन PA, तो अगर P भाई साहब बहुत ज्यादा ग्रेटर है किससे? PA से, तो when P is far greater than PA we can actually ignore this value। 2GH को अपन इग्नोर कर सकते हैं, 2GH कैन बी इग्नोर। 2GH को अपन ने अगर इग्नोर किया तो आपका V1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? बोलो ना बोलो बच्चा पार्टी, V माइनस PA अपॉन रो। ठीक है, क्लियर? और अगर भाई साहब आपका यहाँ पे ये खुला होता है, इफ लेट्स से दिस इज ओपन, देन व्हाट विल हैपन? भाई साहब आपका V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √2GH। ठीक है, मुझे याद है मेरे बाजू के एक बिल्डिंग के एक एक्सपेरिमेंट किया था उन लोगों ने। मतलब एक्सपेरिमेंट क्या किया कि उनका जो टंकी था ना उसको ऊपर से ओपन कर दिया उन लोगों ने। बारिश के टाइम पे कुछ पानी नहीं आ रहा था, तो टंकी को ओपन करने मतलब जो भी बारिश का पानी आएगा आने दो भाई साहब। बारिश का पानी ऑलमोस्ट मतलब कंटिन्यूस शावर के बाद वो सादा पानी होता है, उसको आप पी सकते हैं। ठीक है, आफ्टर द लॉन्ग एंड कंटिन्यूस शावर यू कैन कंज्यूम इट डायरेक्टली, देयर इज नो हार्म इन इट, क्योंकि वो जितना भी मतलब बहुत देर से अगर बारिश, तो उन लोगों ने टंकी का वो खोल दिया। जब वो खोल दिया ना भाई साहब, तो इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया यहाँ पे, प्रेशर क्या वेलोसिटी बढ़ गई, बहुत सारे नल जो है तो खुल गए, पाइप से खुल गए। और ये क्यों होगा? क्योंकि जैसे ऐसा होगा ना तो आपका क्या हो जाएगा, ये वाला अभी तक आप क्या कर रहे थे भाई साहब? P माइनस PA कर रहे थे, अभी आपका क्या हो गया? ये पूरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। मतलब क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू PA हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? √2GH। मतलब अगर आप किसी चीज को ऊपर से ड्रॉप कर रहे हो, वो जितने वेलोसिटी से नीचे गिरेगी फ्री फॉल में, लगभग उतनी ही वेलोसिटी से पानी भी गिर रहा है। और 13-14 माले की बिल्डिंग अगर हो गई तो नीचे वालों के नल खुल जाएंगे, इतनी जोर से वेलोसिटी से होगा ही, ऑब्वियसली होगा। ठीक है, सो दैट विल हैपन। सो आपका V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? √2GH। दिस इज बेसिकली अ वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉल। ये फ्री फॉल का वेलोसिटी है भाई साहब, और इतना बड़ा मतलब मास पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है ये सीधा भाई साहब जब्त से नीचे आएगा। और किसी भी चीज का अगर जब इतनी जोर से ऊपर से नीचे आना होता है तो नीचे वाले जितने भी होंगे, लेट्स से फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे जो है उनके नल खुलने लगेंगे, मतलब नल बाहर आ जाएगा, इतनी जोर से प्रेशर आएगा, ये तो टूट जाएगा, नल के वॉल टूट जाएंगे, ऐसा होगा। ठीक है, आर वी क्लियर व्हाई दिस विल हैपन? ओके 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 ओके। वेंचुरीमीटर भाई साहब क्या होता है? देखो वेंचुरीमीटर। ठीक है, वेंचुरीमीटर इज अ डिवाइस टू मेजर। अच्छा, एक चीज जो मैं भूल गया भाई साहब, यहाँ पे टॉरसलीज लॉ। टॉरसलीज लॉ क्या होता है? व्हाट इज टॉरसलीज लॉ? टॉरसलीज लॉ में आपका टंकी ओपन होता है तो P और P' बराबर होता है, मतलब आपका वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा? √2GH। इट इज एज गुड। तो आप सोचिए कोई चीज ऐसे गिर रही है, ठीक है, और कोई चीज ऐसे जा रही है, समझ में आ रहा है? देखो इसके समझो, वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स मतलब ऐसे, और कोई चीज ऐसे गिर रही है। क्या इसमें जमीन आसमान का फर्क है भाई साहब? है कि नहीं? लेकिन आप सोचिए कि कोई चीज ऐसे गिर रही है, अगर उसके नीचे आप खड़े होते हो तो सर फूट जाएगा, उतनी ही फोर्स से भाई साहब रिफ्लेक्स होगा, दैट इज √2GH। समझ में आ रहा है ये? अगर टंकी खुला हो तो, ठीक है, अगर टंकी खुला हो तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? टॉरसलीज लॉ। दिस इज नोन एज टॉरसलीज लॉ। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, क्लियर ओके ओके। सो वेंचुरीमीटर, व्हाट इज वेंचुरीमीटर? इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ अ लिक्विड थ्रू अ पाइप। तो ये ज्यादा करके हम यहाँ पे तो लिक्विड की बात कर रहे हैं। आप अगर देखोगे कितने बिल्डिंग्स में गैस कनेक्शंस आ गए, यहाँ पे जो लोग हैं आपके बिल्डिंग में गैस कनेक्शन आ गए। आपने कभी वो कार्रवाई देखी थी, मतलब जब वो काम कर रहे थे नीचे? ओके, क्या क्या नोटिस किया था, क्या क्या काम किया था उन्होंने? वो गड्ढा उड्ढा खोदा, फिर पाइपलाइन डाला, फिर क्या किया था? बिफोर गिविंग द कनेक्शन व्हाट इज इट दैट दे डिड? एक चीज उन्होंने की थी, उसको क्या बोलते हैं अपन? बिफोर गिविंग द एक्चुअल कनेक्शन, गैस कनेक्शन। तो गैस भी भाई साहब आपका फ्लूइड है, मान अगर गैस का कनेक्शन आपको आ रहा होगा, ठीक है, वो भी फ्लूइड है। उसके पहले एक चीज उन्होंने चेक किया था, वो था प्रेशर। ठीक है, प्रेशर मतलब जो मेन कनेक्शन है उसका प्रेशर और जो आपको कनेक्शन दिया गया है उसका प्रेशर, इन दोनों प्रेशर्स को उन्होंने चेक किया होगा। इस प्रेशर से लीकेज आइडेंटिफाई होता है। ठीक है, तो वेंचुरीमीटर इस चीज को मेजर करता है।
वेंचुरी मीटर बेसिकली प्रेशर को आइडेंटिफाई करता है कि इतना प्रेशर होना चाहिए, अगर नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लीकेज है, ठीक है। क्योंकि देखो कनेक्शन तो हमने दे दिया, अगर कनेक्शन के बाद कहीं पे लीकेज है तो भाई साहब फायर ब्रेकआउट हो सकता है। आपने अगर उन पाइप्स को देखा होगा, बहुत मजबूत पाइप्स होते हैं वो, बहुत मतलब जो आपके वाटर पाइप्स होते हैं ना उससे भी कहीं ज़्यादा मजबूत होते हैं, कहीं ज़्यादा, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब हैविंग वाइडर ओपनिंग ऑफ क्रॉस सेक्शनल A1, ठीक है। तो आपका हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, देखो यहाँ पे क्या मेजर कर रहे हैं आप, ये एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब हैविंग अ वाइडर ओपनिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, ठीक है, ये वाइडर ओपनिंग है, एंड अ नैरो नेक ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A2। These two regions of the horizontal tube are connected to a manometer। तो ये भाई साहब आपका मैनोमीटर है। अभी देखो जब लिक्विड यहां से फ्लो होगा, तुम कहाँ लिख रही हो, जर्नल लिख रही हो, नहीं यही लिख रही हो, झूठ ना बोलो, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहां से जब लिक्विड फ्लो हो रहा है, यहां से कोई भी फ्लूइड जब फ्लो हो रहा है उसके प्रेशर की वजह से ये नीचे जाएगा, है ना। मुझे बताओ यहाँ पे A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 अगर हम अप्लाई करें, ठीक है, तो A1 किसका ज्यादा है भाई साहब, इसका ज्यादा है V1, तो ये भाई साहब नीचे जाएगा और ये भाई साहब ऊपर जाएगा, ठीक है। तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अभी यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है, ठीक है, ओके। सो इट कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल, तो ये आपका वेंचुरी मीटर का। तो लेट द लिक्विड वेलोसिटीज बी V1 एंड V2। तो लिक्विड वेलोसिटी आपका V1 है, अगर V2 है, एट द वाइडर एंड द नैरो पोर्शंस। लेट P1 एंड P2 बी द लिक्विड प्रेशर्स एट दीज रीजन्स। तो यहाँ पे भाई साहब प्रेशर P1 है और यहाँ पे भाई साहब प्रेशर कितना है, P2। बाय द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो A1 by A2 इज इक्वल टू V2 by V1। क्लियर है, ठीक है। ये तो आपका भाई साहब, ओके। इफ द लिक्विड हैज अ डेंसिटी रो एंड इज फ्लोइंग हॉरिजॉन्टली, ठीक है, देन फ्रॉम बर्नौलीज इक्वेशन, अभी बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, P1 प्रेशर प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो G, और क्या हो जाएगा भाई साहब, ये वाला बोलो भाई साहब, यहाँ पे इफ द लिक्विड एंड इज फ्लोइंग हॉरिजॉन्टली, तो यहाँ पे भाई साहब देखो एक्चुअली में रो GH इसके लिए और इसके लिए ऑलमोस्ट सेम होगा, ठीक है। इस पोर्शन को अगर आप देखोगे, क्यों समझ रहे हो, तुमने जो डिराइव किया था ना इक्वेशन, तो ये वाला देखो, ये हाइट है, ये हाइट है, हम पाइप के बीचों बीच का हाइट ले रहे हैं, ठीक है। तो तुम अगर देखोगे, अरे देखो ना, देखो भाई साहब, ये हो गया तुम्हारा ट्र, ये वाला हाइट, ठीक है, ग्राउंड से जितना भी हाइट है, इसका इस पोर्शन का भी भाई साहब ग्राउंड से उतना ही हाइट होगा, है ना। तो इसका कितना हो जाएगा, रो GH, इसका भी भाई साहब रो GH, तो रो GH दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या ये समझ में आ रहा है थ्योरम, ओके। यहाँ पे होता था, देखो यहाँ पे एक और फैक्टर जो आपका बर्नौलीज थ्योरम का है, वो रो GH और ये रो GH इधर भी होता था, लेकिन ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों की हाइट सेम है, हॉरिजॉन्टली है, ठीक है। इफ द लिक्विड हैज डेंसिटी रो एंड इज फ्लोइंग हॉरिजॉन्टली, देन फ्रॉम बर्नौलीज इक्वेशन वी कैन राइट दिस, ठीक है। रो GH का फैक्टर क्यों कैंसिल हुआ, समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, ओके। तो P1 माइनस P2, दैट इज प्रेशर हियर, माइनस P2, दैट विल बी इक्वल टू हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, और इसीलिए हमेशा P1 आपका P2 से ज्यादा होगा। क्यों, देखिए रो पॉजिटिव होगा और V2 का स्क्वायर, V2 आपका ज्यादा होगा भाई। आपका देखो क्या है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 है ना। तो अगर भाई साहब एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होगी, है ना, और एरिया अगर कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, तो V2 आपका बड़ा होगा, इसीलिए V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। इसका मतलब ये भी पॉजिटिव होगा, इसका मतलब P1 आपका P2 से ज्यादा होगा। इसके लिए हमेशा ये नीचे जाएगा और ये ऊपर। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है भाई साहब। वेंचुरी मीटर को जब आप ब्रॉडर एंड से इस नैनोमीटर को इससे कनेक्ट कर रहे हैं और जो नैरोवर एंड है इसको इधर कनेक्ट कर रहे हैं, आपका लिक्विड हमेशा ऐसा ही जाएगा, क्योंकि यहां पे जो प्रेशर होगा दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन P2। P1 हैज टू बी ग्रेटर देन P2, ये प्रूव ही कर रहा है। देखो P1 तुमको, देखो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है या नेगेटिव मिल रही है तुमको मालूम नहीं है, लेट्स से तुमको यहाँ पे मालूम नहीं है। यहाँ पे देखो प्रेशर P1 है और इधर कितना प्रेशर है भाई साहब, P2 है। अभी P1 माइनस P2 लिख रहे हो तुमको मालूम नहीं है कौन बड़ा कौन छोटा, लेकिन राइट हैंड साइड के कंपैरिजन करो। राइट हैंड साइड में तुमको क्या वैल्यू मिली है, हाफ रो नेगेटिव हो नहीं सकती है, लिक्विड की डेंसिटी है। अब बताओ मुझे V2 और V1 में कौन बड़ा होगा, तो ऑब्वियसली भाई साहब V2 इज ग्रेटर देन V1, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से, है ना। इक्वेशन ऑफ जब ये कम हो गया तो ये बढ़ेगा। मतलब देखो 2 into 4 इज इक्वल टू 4 into 2 होता है कि नहीं।
तो मतलब ये वाला अगर बढ़ गया तो ये वाला भाई साहब आपका कम हो जाएगा, सिंपल है। तो A1 अगर घट रहा है तो V1 बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब आपका क्या है, A1 बड़ा है तो V1 आपका कम होगा, ठीक है। और A2 भाई साहब छोटा है तो V2 आपका ज्यादा होगा, ठीक है। तो अगर V2 ज्यादा है तो ऑब्वियसली V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, विल दिस बी पॉजिटिव? इट विल बी पॉजिटिव। तो इसका मतलब राइट हैंड टर्म में सब कुछ पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब P1 और माइनस P2 ये भी पॉजिटिव हुआ, और ये कब हो सकता है, जब P1 आपका P2 से ज्यादा हो। क्या ये समझ में आ रहा है? देवजीत को क्या हो गया? ओके तो P1 आपका भाई साहब P2 का बड़ा, दिस इज बेसिकली ग्रेटर देन दिस। अभी अपन ने यहां से क्या किया भाई साहब, V1 स्क्वायर को निकाला कॉमन, ठीक है। हाफ रो V1 स्क्वायर, तो कितना बचता है यहाँ पे V2 बाई V1 का स्क्वायर -1। V2 बाई V1 को क्या लिख सकते हैं भाई साहब, V2 बाई V1 को अपन एरिया से भी एक्सप्रेस, तो ये तो एक फॉर्मूला हो गया भाई साहब। दूसरा क्या हो जाएगा, हाफ V1 का स्क्वायर A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, क्योंकि अपन को मालूम है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो अपना भाई साहब अगर है V2 बाई V1 तो इधर कितना हो जाएगा बोलो, A1 बाई A2। तो यहाँ पे तुमने क्या किया है, V2 बाई V1, तो V2 बाई V1 की जगह पे तुम क्या लिख सकते हो, A1 बाई A2। तो A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर माइनस, ठीक है। तो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर, हाइट डिफरेंस बिटवीन द टू आर्म्स। देन हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, अगर ये हाइट डिफरेंस है, इफ h इज द हाइट डिफरेंस बिटवीन द टू आर्म्स देन P1 माइनस P2 इज इक्वल टू h रो g। भाई साहब प्रेशर का डिफरेंस है ना, ये दोनों में प्रेशर का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इतना डिफरेंस है h, तो कितना प्रेशर का डिफरेंस हो जाएगा, रो जी एच, ठीक है। सो दिस विल बी P1 माइनस P2 इज इक्वल टू दिस। तो अपन क्या लिख सकते हैं, h रो g, ये आपका जो लिक्विड आपने यूज किया यहाँ पे उसका डेंसिटी है, ठीक है। रो m मतलब मरकरी की डेंसिटी है यहाँ पे, ठीक है। तो मरकरी की डेंसिटी इंटू जी, दैट विल बी इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर, ठीक है। ओके ओके ओके। सो अब की भाई साहब यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, V1 की वैल्यू, तो यहाँ पे दिख रहा है भाई साहब V1, अगर मैं पूरे को इधर ट्रांसफर करूँ तो आप समझिए इसका क्या हो जाएगा भाई साहब, अरे ओ भाई साहब, तो इधर आ गया आपका 2h मरकरी का डेंसिटी इंटू जी, ठीक है। ये 2 को आपने इधर लिया, नीचे क्या आ जाएगा बोलो, रो, ठीक है, रो, और इधर आ ये भाई साहब आएगा इधर, तो दिस विल बी A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, और ऊपर चला गया भाई साहब आपका A2 का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस वन विल बी हाउ मच, V1 का स्क्वायर, दिस इज हाउ यू विल गेट V1 का स्क्वायर, ठीक है। 2h रो जी, A2 का स्क्वायर ऊपर भाई साहब, तो V1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2h रो m जी A2 का स्क्वायर अपॉन रो A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा ये दोनों रोज आपके अलग अलग है, एक मरकरी की डेंसिटी है और एक भाई साहब वाटर की, ठीक है। ओके सो दिस विल बी A1 का माइनस A2 का स्क्वायर, ठीक है। ओके ओके ओके। सो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड, तो ये तो आपका हो गया वॉल्यूम V1, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड, इसको आप A1 V1 से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और A2 V2 से भी, ठीक है। तो A1 V1 अगर आप करते हैं तो A1 V1 भाई साहब कितना हो जाएगा, देखो A1 इंटू इस पूरे को, ठीक है, आप A2 के स्क्वायर को निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो V1 की वैल्यू अगर हम देखेंगे A2 के स्क्वायर को निकाल सकते हैं, राइट। A2 निकाल लिया आपने, और यहाँ पे कितना बचा, 2h रो mg अपॉन रो A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। तो अगर हमको करना है A1 V1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 V1 मतलब A1 A2, और ये हो गया आपका 2h रो mg अपॉन रो A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, ठीक है। यही आ गया, देखो क्लियर है, आर बी क्लियर। इन दोनों रोज को आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं, एक रो m है, दैट इज रो m इज बेसिकली द डेंसिटी ऑफ मरकरी, और एक है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। क्लियरम क्लियरम क्लियरम, बहुत बढ़ियम बढ़ियम बढ़ियम, ठीक है। ये आपने देखा रहेगा, इसको अपन एटोमाइजर बोलते हैं, ठीक है। द वर्किंग ऑफ एन एटोमाइजर विच इज यूज टू स्प्रे लिक्विड्स बेस्ड ऑन बर्नौलीज प्रिंसिपल। आपने देखा रहेगा ये जो मैकेनिक्स होते हैं उनके पास रहता है ये, ठीक है। गाड़ियों के ऐसे ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ पे तेल का पहुँचाना ज़रूरी होता है, और जहाँ पे आप मतलब और कोई तरीके से पहुँचा नहीं सकते, तो इसको स्प्रे टेक्निक बोलते हैं। द वर्किंग ऑफ एन एटोमाइजर विच इज यूज टू स्प्रे लिक्विड्स इज बेस्ड ऑन बर्नौलीज प्रिंसिपल। अब देखिए इसको कैसा है, इट शोज द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ एन एटोमाइजर व्हेन द रबर बलून इज प्रेस। जब आप इसको प्रेस करते हैं तो ये लिक्विड बाहर आएगी। क्यों ऐसा होगा बोलो, हो क्या जाएगा, जैसे आप इसको प्रेस करोगे
तो इधर का सारा बाहर आ जाएगा, इधर का अगर बाहर आ जाएगा तो प्रेशर क्या हो गया, लो हो गया। इस प्रेशर को लो के वजह से भाई साहब इसमें प्रेशर क्रिएट होगा और ये ऊपर जाएगा, ठीक है, प्रेशर को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। When the rubber balloon is pressed, the air rushes out of the horizontal tube, decreasing the pressure to P2. तो आपका भाई साहब प्रेशर गिर गया P2 में, ठीक है, which is less as compared to the atmospheric pressure P1 in the container. तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है भाई साहब P1, तो यही वाला प्रेशर इसको बैलेंस करेगा भाई साहब, ठीक है, इसको लिक्विड को पुश करेगा, लिक्विड पुश होकर भाई साहब इसके ऊपर से जाएगी और ये स्प्रेड आउट होगा, ठीक है। As a result, the liquid rises up in the vertical tube. When it collides with the high speed of air in the tube, it breaks up into fine spray. आपके डीओ वगैरह में भी यही है, आपके परफ्यूम्स वगैरह में भी यही टेक्निक इस्तेमाल होती है, ठीक है। वो जो आप प्रेस करते हैं उससे क्या होता है, उस छोटे से नोजल में से एयर बाहर जाता है, और जैसे ही एयर बाहर जाता है तो एयर प्रेशर ड्रॉप हो गया। जैसे ही एयर प्रेशर ड्रॉप हो गया तो इधर का प्रेशर बढ़ गया और इसने लिक्विड को पुश किया, विच राइजेस अप द कैपिलरी एंड गोज आउट, ठीक है। सो यही सेम चीज होती है, एटोमाइजर बोले या भाई साहब आपका परफ्यूम या डीओ के स्प्रेज में ये सेम टेक्निक एप्लीकेबल होती है, ठीक है। अगर आपका ये प्रेशर पंप खराब हो जाता है तो डीओ भरा रहेगा तो भी भाई साहब बाहर नहीं आएगा, या जो परफ्यूम है वो अगर भरा भी रहेगा कंटेनर में तो भी बाहर नहीं आएगा अगर आपका ये स्प्रे पंप खराब हो जाता है, ठीक है। ओके ओके ओके, so what is dynamic lift? Is the force that acts on a body such as aeroplane wing, a hydrofoil or a spinning ball by virtue of its motion through a fluid. It is responsible for the curved path of a spinning ball and the lift of an aircraft wing. तो एयरक्राफ्ट का ऊपर जाना या किसी स्पिनिंग बॉल का घूमना, ठीक है। क्रिकेट में जब आप बॉल को स्पिन करते हैं, ठीक है, सो बॉल का डायरेक्शन घूम जाता है। आपने बहुत बार देखा होगा रिप्ले में, बॉल ऐसे आई और ट्यूब ऐसे चली गई या ऐसे चली गई, ठीक है। व्हाई इज इट हैपनिंग? क्योंकि जब आप बॉल को घुमा रहे हैं तो आसपास का जो एयर है वो उसको ऐसे घुमा रहा है, ठीक है। सो डायनेमिक लिफ्ट इज बेसिकली व्हाट, द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन अ बॉडी सच एज एरोप्लेन विंग, अ हाइड्रोफॉइल और अ स्पिनिंग बॉल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट्स मोशन थ्रू अ फ्लूइड। फ्लूइड मतलब एयर है भाई साहब, ठीक है। आप देखोगे बहुतों बार कमेंटेटर्स ये बोलेंगे कि आज हवा चल रही है तो बॉल में स्पिन ज्यादा हो रहा है, ठीक है। कभी कभी पिच की वजह से भी होता है और कभी कभी हवा चलने की वजह से भी होता है, ठीक है। ओके, सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कर्व्ड पाथ ऑफ अ स्पिनिंग बॉल एंड द लिफ्ट ऑफ एन एयरक्राफ्ट विंग। तो मैग्नस इफेक्ट बोलते हैं। व्हेन अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद अ लार्ज वेलोसिटी एंड द सेम टाइम गिवन अ ट्विस्टिंग मोशन टू कॉज अ स्पिन, तो बॉलर वो अच्छा होगा जो बॉल में स्पिन ला सके, चाहे वो फास्ट बॉलर हो चाहे स्पिनर हो, ठीक है। इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स यूजुअल पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी फॉर spin free motion. This deviation can be explained on the basis of Bernoulli's principle. When the ball spins about an axis perpendicular to its horizontal motion, it carries with itself an air layer due to viscous drag. तो वैसे भी घूम रहा है, जब ये बॉल घूम रहा है तो इसके साथ एक एयर, इसके साथ जो एयर है वो भी घूम रहा है, समझ में आ रहा है, उसके साथ है, ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है। द एयर विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द बॉल दैट विल ऑल्सो रोटेट, ठीक है। When the ball moves forward with velocity v, the air ahead of the ball rushes backward. तो आपका भाई साहब अभी क्या होगा, जो एयर ahead of the ball है वो पीछे जाएगा, है ना, ठीक है। Thus the streamlines in air due to translatory motion of the ball are of the form. तो आपका भाई साहब ये घूम रहा है तो ये एयर ऐसे जा रहा है। अभी देखो जैसे ये कर्व्ड पाथ, ठीक है, ये आपका हाई वेलोसिटी है, ठीक है, ये कर्व्ड पाथ है और ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। The layer of the ball moves in a direction opposite to that of the spinning ball. So the resultant velocity decreases. समझ में आ रहा है? देखो इधर क्या हो रहा है, बॉल ऐसे घूम रही है, देखो ध्यान दो, ठीक है। बॉल नहीं है भाई साहब, चलो ये भाई साहब बॉल समझ लो, ठीक है। बॉल भाई साहब ऐसे घूम रहा है तो इसके तरफ यहाँ पे मोशन किधर है, इस तरफ है, ठीक है। और एयर का भी मोशन किस तरफ है, इस तरफ है, तो मतलब सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अभी ऊपर की तरफ आते हैं, ठीक है। ऊपर बॉल कैसे घूम रहा है, ऐसे, और एयर कैसे जा रहा है, ऐसे, तो मतलब एयर और बॉल के मोशन में फ्रिक्शन जनरेट होगा, ठीक है, क्योंकि आपका एयर जो है वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। क्लियर है, आर वी क्लियर, ठीक है। तो ऊपर वाले मोशन में ध्यान दें अगर आप, तो बॉल का मोशन किस तरफ है, इस तरफ, और एयर का मोशन किस तरफ है, एयर इस तरफ। सो द एयर्स मोशन इज नॉट सपोर्टिंग द मोशन ऑफ द बॉल, बट डाउनवर्ड्स द एयर इज मूविंग दिस वे एंड द बॉल इज ऑल्सो मूविंग दिस वे, सो बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है।
तो बच्चा पार्टी यहाँ पे अगर आप देखोगे, एंड हेंस pressure increases in accordance with the Bernoulli's principle. The layer below the ball moves in the direction of spin. The resultant velocity increases and then pressure decreases. क्योंकि अगर आपका velocity देखो, आपका pressure plus half rho v square plus rho gh है भाई साहब, है ना, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं, अभी टसन इन दोनों में है, ठीक है। अगर ये बढ़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट है देखो, ठीक है, अगर ये बढ़ रहा है तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ रहा है तो आपका प्रेशर एनर्जी डिक्रीज होगा। हाइट हमने सेम माना है, समझ लो, ठीक है। दूसरे पे आते हैं कि अगर, तो मतलब अगर आपका वेलोसिटी किस तरफ बढ़ रहा है, देखो इस तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी को सपोर्ट मिल रहा है एयर का, ध्यान देना, वेलोसिटी को सपोर्ट मिल रहा है एयर का, तो वेलोसिटी बढ़ेगा। अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ेगा। और बर्नौलिस थ्योरम को कांस्टेंट रखने के लिए ये क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन टू दिस वन, दिस विल डिक्रीज। तो प्रेशर बिलो क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ऊपर आते हैं भाई साहब, ऊपर आपका वेलोसिटी में ठसन है ना, एयर जा रहा है ऐसे, बॉल जा रहा है ऐसे, तो वेलोसिटी विल डिक्रीज। वेलोसिटी अगर डिक्रीज होगा तो बर्नौलिस थ्योरम को कांस्टेंट रखने के लिए प्रेशर आपका इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। क्योंकि देखो जब हम इसकी बात कर रहे हैं ना, तो समझ लो ये हाइट h पे, ये दोनों का हाइट ऑलमोस्ट सेम ही हो गया, दोनों का हाइट ऑलमोस्ट सेम होगा, तो यहाँ पे हाइट की वजह से ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो द कंसिडरेबल फैक्टर्स हियर फॉर बर्नौलिस प्रिंसिपल टू बी कंसिडर्ड फॉर द मोशन ऑफ अ स्पिनिंग बॉल वुड बी जस्ट द प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, ओके। सो ड्यू टू द डिफरेंसेस ऑफ द प्रेशर ऑन द टू साइड्स ऑफ द बॉल कर्व्स डाउनवर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ स्पिन। तो ऐसे डाउनवर्ड्स कर्व करेगा, ठीक है, इट विल बेसिकली कर्व डाउनवर्ड्स। तो बॉलर ने बॉल को छोड़ा लेकिन वो ऐसे जाएगा, देखो ऐसे कर्व होके जाएगा। फास्ट बॉलर का बॉल कैसे जाता है, जप ऐसे, ठीक है। स्पिनर का बॉल कैसे जाता है, ऐसे। आपने अगर क्रिकेट खेला रहेगा तो जब आप फास्ट बॉलिंग करते हो तो बॉल को ऐसे डायरेक्टली डालते हैं, तो वो ऐसे गया ऐसे जा रहा है, उसमें कोई कर्व नहीं मिलेगा। लेकिन जब स्पिनर बॉल छोड़ता है तो वो बॉल ऐसे ऐसे जाएगा। समझ में आ रहा है ये, तो ये कर्व्ड नेचर क्यों आएगा, कर्व्ड नेचर ये आएगा क्योंकि यहाँ पे आपका भाई साहब प्रेशर किधर ज़्यादा होगा, इधर ज़्यादा और इधर कम, मतलब वो बॉल के मोशन को दबाएगा। देखो स्पिनर ने बॉल को ऐसे रिलीज किया है ना, तो वो ऐसे ही जाना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं जा रहा है, वो ऐसे जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई साहब ऊपर का प्रेशर आपका ज़्यादा, नीचे का प्रेशर कम, तो ऐसे 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 उसको नीचे की तरफ लेकर जाएगा। समझ में आ रहा है ये। फास्ट बॉलर का बॉलिंग डालना और स्पिनर का बॉलिंग डालना समझ में आ रहा है भाई साहब। फास्ट बॉलर डायरेक्टली बॉल को डाल रहा है विदाउट स्पिनिंग द बॉल। अगर कोई आप डायरेक्टली आप किसी बॉल को डाल रहे हैं तो ये ऐसे गया ऐसे आया, ठीक है। लेकिन जब आप स्पिन करके डाल रहे हैं तो आपका जाना चाहिए ऐसे, लेकिन आपका जा रहा है भाई साहब ऐसे, ठीक है। द कर्व नेचर इज बिकॉज देयर विल बी हायर प्रेशर ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द बॉल एंड लोअर प्रेशर, तो ये भाई साहब इसको ऐसे नीचे करेगा, ठीक है, ओके। So the difference in the lateral pressure which causes a spinning ball to take a curved path which is convex towards the greater pressure side, this is called the Magnus effect. इसको अपन बोलते हैं Magnus effect. This effect was first noticed by German scientist H.G. Magnus in the mid 19th century. The rougher the surface, the thicker is the layer of air dragged along by the spinning ball and the more the curved path. ठीक है, जितना ज़्यादा आपका रफ सरफेस होगा, the rougher the surface, the thicker is the layer of air drag, तो उतना ज़्यादा एयर ड्रैग होगा, ठीक है, along by the spinning ball and more curved path, उतना ही ज़्यादा कर्व्ड पाथ होगा। इसीलिए देखो आपने वो टेनिस बॉल देखा रहेगा जिससे लोग क्रिकेट खेलते हैं, वो उसका सरफेस जो है वो ज़्यादा स्पिन नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल क्रिकेट बॉल्स होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आपको अगर क्रिकेट बॉल को देखोगे तो उसमें भाई साहब रफ सरफेस होता है, ये उसका भाई साहब ऐसे सिलाई होती है ना उसमें, ठीक है। सो इसको रफ बनाया जाता है। बॉल टैंपरिंग का इशू आपने सुना रहेगा, राइट। बॉल टैंपरिंग करते हैं, बॉल टैंपरिंग में कुछ नहीं करते हैं, एक सरफेस को रफ बना देते हैं, ठीक है, मतलब झोल झाल कर बस अब घूमेगी बॉल, ठीक है। तो ये बॉल टैंपरिंग इसी तरीके से होता है कि आपने एक सरफेस को अगर भाई साहब ऐसा बना दिया तो बॉल धपाधप घूमेगी, मतलब अगर ऐसे गिरना था उसको और ऐसे जाना तो ऐसे जाएगा भाई साहब, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पिन होगी। तो आपका क्या बॉल टैंपरिंग करने का मकसद क्या है कि एक सरफेस को इतना रफ बना दो कि भाई साहब वो घूमे, क्योंकि आप सरफेस को जितना ज़्यादा रफ बनाएंगे उतना ज़्यादा आपका विस्कस ड्रैग क्रिएट होगा, उतना ज़्यादा आपका एयर भी घूमेगा, उतना ज़्यादा एयर को वो कैरी आउट करेगा। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस विद बॉल टैंपरिंग। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।